دل امید توڑا ہے کسی نے، دل امید توڑا ہے کسی نے، سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے پروگرام فنکار ہو تو ایسا میں ہوں آپ کا میزبان علی نوا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو فنکار موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنا نام بخوب کمایا۔ آپ کا 2012 میں بیلجیم کے ڈاک ٹکٹ پر تصویر جاری کی گئی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں استاد آصف علی سنتو خان کا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ کیسے ہیں خان صاحب؟ جی شکر الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، خیریت۔ خان صاحب، میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے داتا علی اجمیری کورس پر محفل سماع کا افتتاح کیا۔ آپ کا کیسا رہا ایکسپیرینس؟ جی یہ مجھے بہت تھینک یو، بہت شکریہ پہلے فرسٹ آف آل آپ کے آنے کا، اور جو داتا حضور کے آستانے پہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ جو میں داتا صاحب سرکار کی جو مجھے وہ موقع ملا، اور میں انشاءاللہ دعا گوں کہ ہمیشہ مجھے ملتا رہے یہ موقع، میری نسل تک ملتا یہ موقع ملتا رہے، کیونکہ ہم نسل در نسل ان درگاہوں سے ہماری وابستگی ہے، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے آباء و اجداد کی، ان ہستیوں کی وجہ سے ہم اس جو بھی ہمیں عزت ملتی ہے، جو ہمیں مقام ملتا ہے، بیسیکل پس پردہ ان ہستیوں کی دعائیں، ان ہستیوں کا فیض، اسپیشلی میرے مرشد پاک سید سلمان علی شاہ صاحب، سید علی احمد شاہ صاحب بدوم علی شریف والے، میں ان کا غلام ہوں، ان کا خادم ہوں میں، تو یہ نسبت کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہے، تو بہت بڑا میرے لیے جس کو کہتے ہیں نا، میں پوری دنیا میں جاتا ہوں پر یہ میرے لیے بہت بڑا ایوارڈ ہے کہ میں نے، اگر غلط نہیں ہو تو میرے خیال میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ کسی لاہور کی پارٹی نے اور آصف علی نے افتتاح کیا۔ جی یہ آج یہ الحمدللہ ایسے ہی ہوا، اور بات ہے کچھ بہت لمبی ہے، تو دیکھیں میں ہم اسی میں کسی کو جس کو کہتے ہیں نا، ہم کسی کو انڈرسٹوڈ نہیں کرتے ہیں، یا کسی کو انڈر پریشر نہیں کرتے، کسی میڈیا کو، یا کہ جی ہمیں یہ کروائیں، ہمیں وہ کروائیں۔ ہم تو اس بات پہ شاکر ہوتے ہیں کہ حاضری ہے، تو ہم حاضری کی نیت سے جاتے ہیں، کسی بھی مزار شریف پہ جائیں، تو ہمارے مرشدوں کا بھی یہی فرمان ہے کہ کبھی بھی کسی مزار پہ جاؤ اور حاضری کی ہی نیت سے جاؤ، کبھی فنکار یا قوال بن کے نہ جاؤ، کیونکہ وہاں سے فیض ملنا ہوتا ہے، تو اب عاجزی میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے ولیوں کو عاجزی ہی پسند ہے۔ تو اگر اس بات پہ ہم آئے تو ہم تو 4 نسلوں سے داتا صاحب سرکار کی حاضری کرتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آگے ہماری نسلوں نے قیامت تک یہ حاضریاں کرنی ہیں، تو وہ آپ نے کہا نا کہ فرسٹ ٹائم لاہور میں ہوا، تو یہ ہے کہ نصرت فتح علی خان صاحب پہلے افتتاح کرتے تھے، تو نو ڈاؤٹ نصرت فتح علی خان صاحب تو ایک شخصیت کا نام، ایک جو قوالوں کے جس کو کہتا ہوں سپر پاور ہوئے، ٹھیک ہے جی، تو جنہوں نے قوالی کی ویلیو بتائی کہ قوالی کی ویلیو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب داتا صاحب کا سرکار کا جو عرس پاک کا جو افتتاح ہے، وہ خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب کے بعد اب کبھی اس کو دے رہے ہیں، کبھی اس کو دے رہے ہیں، کبھی اس کو دے رہے ہیں، ہم نے کبھی بھی اس بات پہ کبھی اعتراض نہیں کیا، ٹھیک ہے، ہم تو اس بات پہ شاکر ہیں کہ جس کے نصیب کا ہے، داتا صاحب جس کو بلائیں گے، جس کے نصیب کا اس کو دے دیا۔ اس دفعہ ان کی کرم نوازی میرے مرشد پاک کی دعا سے وہ میرے نصیب میں مجھے ملے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہر سال میں ہی کروں گا انشاءاللہ۔ بڑی خوشی ہوئی خان صاحب۔ خان صاحب، آپ نے کس ایج میں سیکھنا شروع کیا؟ میں جی 12 سال کی ایج میں تھا جی، بہت چھوٹا، آپ کو لگا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے؟ جی بہت چھوٹا سا تھا جی، میں بیسیکل میں یہ بہت لمبی داستان ہے، میں شارٹ کر کے بتاؤں گا۔ میرے دادا جی سنتو خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نا بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بالکل چھوٹا سا تھا، تو انہوں نے میری دادی سے سوال کیا، کہ پوچھا کہ منظور، میرے والد صاحب کا نام منظور حسین، کہ منظور حسین کے بچوں میں کوئی بیٹا نظر نہیں آ رہا جو اس سیٹ کو سنبھالے گا؟ تو ہم ماشاءاللہ 9 بھائی ہیں، تو میں اس وقت 4-5 سال کی ایج میں تھا، کھیل رہا تھا ادھر ہی،
गढ़ी शो में। हमारा भाई अबू अजदाद अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अबू अजदाद हम गढ़ी शो से हैं, अपना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हम आज कहीं भी रहते हैं, कहीं भी हैं, ये सरकार का करम है। तो हमारी आबाई तो गढ़ी शो है, जहाँ हमारे दादाजी तशरीफ़ लेके आए। तो वो मैं खेल रहा था तो दादी जी भी हैरान हो गए कि वाकई मेरे मंजूर बेटे या एक मेरे चाचा जी हैं मुनव्वर हुसैन, उनके बेटों में भी कोई नहीं है ना क्योंकि पार्टी लीडर होना, गाने तो सभी गाते हैं, बिल्कुल हमारे खून में या एक हमारी ब्लड के अंदर शामिल है मौसीकी शामिल। वो तो हमारे सारे बच्चे माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं गाल, पर एक प्रॉपर जो एक पार्टी लीड करना, एक जो हमारे पुश्त दर पुश्त तो चलता आ रहा है कि हमारी कवाली की जो एक सीट है। मेरी दादी कहते हाँ, इतनी देर मेरे अब्बू जी भी आ गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने ये बात पूछी, वो भी परेशान होकर बैठ गए कि मेरे बेटों में कौन करेगा ऐसा बच्चा। तो मेरे दादाजी ने ना मुझे आवाज़ दी, मुझे बचपन में बाबू कहते थे, तो उन कहते हो बाबू इधर आए। मैं खेल रहा था, जब मैं आया उन्होंने मुझे अपनी गोद में ले लिया और मुझे फरमाते हैं कि तुम गाओगे। और मुझे इस बात की थोड़ी सी होश है, बिल्कुल है, कि मुझे क्वेश्चन हुए। मैं कि जी, तो फरमाते हैं तो तू गावेगा भी? मैं कह जी, मुझे कहते अपनी ज़ुबान निकाल बाहर। मैं निकाली, उन्होंने अपना लब मेरी ज़ुबान पे लगा दिया। तो मेरे वालिद को कहते हैं ये कवाल बनेगा, छोड़ दो बस। अब मेरा फिक्र, बस वो वली हुए हैं जी अपने काम के, अपने। कासिम, आपके दादा को माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है। जी जी संतू खान जी, उस्ताद खतर साहब। तो आपने नुसरत फतेह अली खान साहब की शागिर्दी की? देखिए जी, एक बड़ा मुझे सवाल होता है, मैं इस बात पे हंसता भी हूँ। मैं अगर नुसरत उस्ताद संतू खान साहब का पोता हूँ ना, इसमें मेरे लिए एक बहुत बड़े क्रेडिट की बात है। उस्ताद संतू खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ऐसे ही आपके लिए क्रेडिट की बात है। बड़े दादा बाप का बेटा या पोता होना बहुत बड़ी मुसीबत भी है, बिल्कुल, उसको संभालना जी हर किसी के काम बस की बात नहीं, समझते। तो मैं अगर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का शागिर्द हुआ, तो ये अब देखें, मैं संतू खान साहब का पोता हूँ, ठीक है, और जिस दौर में मैंने होश संभाली वो दौर सारा नुसरत फतेह अली खान साहब का, ठीक है। और ये नहीं कि मैं उनकी शोहरत देख के उनका शागिर्द हो गया, मैं उनके फ़न को देख के उनको फ़न को मैं लाइक करता हूँ। मैंने उस दौर में लाइक किया जब खान साहब का जब खान साहब को पाकिस्तान में लोग जानते थे। 88 की बात कर रहा हूँ, 86 में मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब को सुना। हमारे घर में न्याज होती थी, तो नुसरत फतेह अली खान साहब आए हमारी न्याज पे कवाली करने के लिए। तो मैं उस वक्त बच्चा था बिल्कुल, तो मैं उस वक्त ही फ़ैन हो गया। मैं कहा ये कवाली कुछ और है। उस वक्त से मेरे वो जिसको आइडियल बन गए। जब मैं इस फील्ड में आ गया, बच्चा था मैं, तो मैंने ख्वाहिश ज़ाहिर की, मुझे शागिर्दी उनका होना है। अच्छा, आपने खुद ही बोल दिया। और मुझे ये भी शर्फ हासिल है, मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, उनके मैनेजर भी मौजूद है साहब मौजूद, कि मैं वहाँ शागिर्द हूँ जिनको नुसरत फतेह अली खान साहब ने कह के शागिर्द किया था कि ये बच्चा मुझे दे दे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं कभी बड़ा बोल नहीं बोलता हूँ, ये उनकी दुआएं हैं, उनकी मोहब्बत है। मुझ ना चीज़ जैसे बंदे को उन्होंने कह के शागिर्द किया। तो ये कि सारी ये शॉर्ट में उस बात इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ कि जो लोग गिला करते हैं, देखें अगर मैं बड़े दादे बाप का पोता हूँ तो फिर मुझे बड़ा ही उस्ताद चाहिए था, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात, मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब मेरे आइडियल थे, मैंने उनको आइडियल, अब मैं उनका शागिर्द दूंगा। बड़े लोगों ने एतराज़ किया, आज वही लोग उनकी कॉपियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि कल तो आप मेरी शागिर्दी पे एतराज़ करते थे, आज आप उनकी कवाली ना गाए, आपको पैसे नहीं होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सीधी खुली नंगी चिट्ठी बात कर रहा हूँ। अब कहाँ गई आपकी? आप कोई किसी कवाल का शागिर्द था, कई तो ऐसे हमारी फैमिली में बंदे जो हमारे घराने के शागिर्द थे ना, मेरे दादा के शागिर्द थे, वो उनके शागिर्द हो गए।
अपने शिगिर्दों के आगे शिगिर्द हो गए माशाल्लाह, आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो अल्लाह उनको हदायत दे, ठीक है जी। तो वो बुजुर्गों की मिसाल के किसी का मुंह लाल हो तो चपेड़ों से मुंह लाल नहीं खुद नहीं होते, कर लेते बिल्कुल। ठीक है। तो अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह ही सब देता है, हमारी कोई वक़्त नहीं है। कुछ नहीं, हम हमारी नीयत पे डिपेंड है। नीयत हम लोग का दारोमदार नीयतों पर है कि नीयत इंसान की अच्छी होनी चाहिए, माँ बाप का अदब वाला होना चाहिए, पीरो मुर्शिद का अदब हो, बड़ों का अदब हो, अदब ही से सब कुछ मिलता है। अदब बहुत ज़रूरी है। पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मोहब्बत अदब में ही सब कुछ है। बहुत अगर ज़िंदगी में आपने कहीं तरक्की करनी है ना, अदब पहले अदब में ही सब कुछ है। बहुत चाहे आप बिजनेस में, घर में, कहीं भी हैं, हमें तो यही सीखा है, हम यही इसी की वजह से मिल रहा है। और मैं कहें हम बहुत बड़े फ़नकार हैं, हम कुछ भी नहीं, हम छोटे से फ़नकार हैं। बुज़ुर्गों का सिलसिला लेके चल रहे हैं, चलते रहेंगे इंशाल्लाह आगे। तो बात यह है कि जो भी मिल रहा है ना, उनकी दुआओं से और अदब से और हाँ जी। इंशाल्लाह। आपने नुसरत अली खान साहब के साथ कितना टाइम? 9 साल जी। 9 साल। जी जी, मुझे उन्होंने अपने बेटों की तरह प्यार किया। मैं बड़ा खुश नसीब हूँ, मेरा उनके साथ बड़ा ही अच्छा टाइम गुजरा है। सारे जितने मेरे जो ख़ास उस्ताद भाई हैं, जी जी अब तो सारी दुनिया, हर बंदा ही मुंह उठा के जी मैं नुसरत अली खान का शागिर्द शागिर्द हूँ। तो बिल्कुल ऐसे मैंने 9 साल साथ गुजारे हैं। मैं जब चेहरे देखता हूँ मैं कह यार मैंने 9 सालों के में अल्लाह की कसम मैंने इस बंदे को एक दफ़ा भी नहीं देखा। तो ये बंदा कह रहा है भी मैं नुसरत, शागिर्द। फिर कहते हैं अच्छा यार अल्लाह ने रोज़ी लगाई है, ठीक है हम क्यों कहें, ठीक है यार। खान साहब, आपने नुसरत अली खान के साथ कभी परफॉर्म करने का मौका मिला? जी, मैं 1997 में मैं उनका जो लास्ट टूर था ना, जी उसमें मैं तकरीबन 8.5 महीने में उनके साथ बॉम्बे में रहा था, जिसमें उन्होंने मूवी की थी कच्चे धागे, और प्यार हो गया, धड़कन, कारतूस, बेंटेड क्वीन, दिल लगी, ये सारा म्यूजिक किया था। तो मैं 8.5 महीने उनके पास साथ रहा था वहाँ पे बॉम्बे में। नुसरत अली खान साहब की कोई ऐसी बात या नसीहत जो आपको आज भी याद हो? कोई ऐसी एक बात जो आपको आज भी कहीं भी आप परफॉर्म करें तो उनकी कोई बात याद आ गई आपको? हाँ जी, एक बात है, उन्होंने मुझे एक बड़ी बात कही थी। मैं जब उनसे सीख रहा था तो मैं शर्माता था। उन्होंने मुझे एक बात कही थी, उन्होंने कहा ज़िंदगी में परफॉर्म करते वक्त कभी ना शर्माना। अल्लाह को और पंचतन पाक को याद करके बैठना, बस यही समझना कि मैं ही बैठा हूँ और कोई नहीं। तो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस जो है ना अपने अंदर ये रखना, अगर प्रेशर के अंदर आओगे कभी गा नहीं सकोगे। तो और अदब और जिसको कहते हैं ना आइजी अंदर, वो आइजी के साथ, तकब्बर के साथ, पर कॉन्फिडेंस एक और चीज़ है, ठीक है ना। तो वो काफ़ी उनके फरमान मुझे याद है, उनके, मैं उनको फरमान ही कहता हूँ कि वो मेरे वो शख्सियत ही ऐसी हुए। हाँ साहब, आप टर्की ड्रामे में आपकी एक गज़ल थी, उसके बारे में आप कुछ कहना है? जी जी, टर्की वालों ने, वो मेरा बेसिकल पाकिस्तान में वो मेरा बहुत बड़ा सीरियल था अपनी कहानी जी जो सलीम शेख साहब ने किया था। तो वो मेरा गाना बड़ा हिट हुआ, दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने। तो उन्होंने फिर वो टर्किश वालों ने ले लिया वो सारा। अब वो एक और लड़के हैं वो इंडिया से, वो भी कर रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेक्स्ट मंथ जा रहा हूँ इंडिया, वहाँ पे इंडियन मूवी कर रहा हूँ। उसमें हमारे ऑलरेडी मैं इंशाल्लाह एक गाना मेरा कंप्लीट भी हो गया 3-4 दिन पहले। तो आगे वो मज़ीद काम कर रहा हूँ दुबई जाके भी। जी, काफ़ी लंबे काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जी, मेरे मालिक का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, आप पाकिस्तान में आप तो बहुत से लोगों के फेवरेट हैं, आपका कोई फेवरेट कवाल या सिंगर? जी, मेरे पाकिस्तान में एक ही शख्सियत फेवरेट है, वो है नुसरत अली खान। सच बात कहनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना। सब बहुत अच्छे हैं। हाँ, सज्जाद अली बहुत अच्छे हैं, सिंगर सज्जाद अली बहुत अच्छे हैं। सरहद पार करें, भारत में जब जाएं तो लता जी, लता जी। और न्यू में श्रेया घोषाल भी हैं। मुझे अलका जी बहुत पसंद है, मुझे उद्दत नारायण बहुत पसंद है। वो आपके उस्ताद को बहुत जी 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 मेरे जी जी मुझे सोनू भी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मेरी दोस्ती भी है। पर एज ए अपने अपनी पसंद की बात है। मुझे कुमार सानू भी अच्छे हैं, उद्दत नारायण बहुत अच्छे, मुझे बहुत पसंद है। हाँ जी। खान साहब, आपका कोई ऐसा वाक़या
बचपन का जो आपको आज भी याद हो कि यार वो क्या शरारत की थी मैंने? बड़ी शरारतें की है बचपन में जी। एक वो तो याद हो, बड़ी शरारतें की है स्कूल में, बचपन में। अब तो खुद माशाल्लाह बच्चों वाले हो गए हैं, माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए जी। तो अब कभी कभी याद आती हैं वो शरारतें, तो फिर खुद अकेले, मेरी वाइफ भी कहती है आप आंसर क्यों रहे हो? मैं कहा यार कुछ याद आ गया क्योंकि मेरी वाइफ भी साउथ अफ्रीका से है ना, हमारा कुछ कल्चर डिफरेंस है। मैं वो कहती क्यों हंस रहे हो? मैं कहा मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं कि मैं कौन सी शरारत पे हंस रहे हैं। आपने माशाल्लाह पूरी दुनिया में परफॉर्म किया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी परफॉर्मेंस जो आपको आज भी याद हो और बहुत ही आपको जब भी याद है तो मज़ा आ जाता है जी। मुझे बड़ी परफॉर्मेंस है जी, ओलंपिक्स में भी, लंदन ओलंपिक्स में भी, पूरी दुनिया में। पर एक मुझे परफॉर्मेंस बड़ी यादगार है मेरी जी, शहनशाह के करम से, वो न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड शहर उनका न्यूजीलैंड का। वहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा था, तकरीबन 16-17 हज़ार लोग थे, ज़्यादा ही होंगे। वो दिन के टाइम एक बहुत बड़ा एक उनका एक कौमी जैसे होता है ना, एक बहुत ख़ास, पर मेरा वन मैन शो था मेरा, मैंने परफॉर्म करना था वहाँ पे। वो जी मैं फर्स्ट टाइम था उस वक्त मेरा। उसके बाद तो मैं काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। मैं गा रहा था तो मैं मन कुंतो मौला पढ़ रहा था, तो मैंने ना एक उसमें नया वर्जन बनाया कि मैं जब अली मौला का जिक्र करता हूँ तो मैं, वो लोग भी मेरे साथ अली मौला कहते हैं, आपने देखा होगा। ये भी मुझे एजाज़ हासिल है मेरे मालिक के करम से कि पूरे दुनिया में मैं उन लोगों को उनके कवाली के ज़रिए, उन लोगों के मुंह से नबी अली के नाम के नारे, जो एक हमारा एक जिक्र है, वो हमारी कोशिश है कि ये भी तबलीग का हिस्सा है। तो वो मैं अब वो अली मौला का जिक्र इस लय पे, टेम्पो पे चला गया था कि वो एक वजद की कैफियत थी। अच्छा खान साहब, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं परफॉर्म करूँ, कोई ऐसा स्टेज, कोई ऐसा कॉन्सर्ट जहाँ आप चाहते हैं कि मैं यहाँ? इंशाल्लाह बॉलीवुड में मेरे है जी, मैं चाहता हूँ कि मैं उनको कुछ नया ट्रेंड दूँ कवाली का। जिस तरह आजकल मैं पाकिस्तान में आपकी दुआ से, मालिक के करम से, सरकार के करम से 99% यंगस्टर मुझे सुनते हैं यहाँ पे कवाली। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक नया दौरा शुरू है कवाली का। कभी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कवाली नहीं होती थी। नुसरत फ़तेह अली खान साहब का दौर बहुत बड़ा था, पर उस वक्त लोगों को शौर आ रहा था, पर नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने काम ऐसा किया कि करके चले गए। अब लोगों को शौर आ रहा है कि ये कवाली क्या है, कवाली का मकसद, इसके अंदर तो सारे म्यूजिक है। लास्ट पे आप कोई मैसेज दें अपने फैंस को? बस जी मैसेज यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माँ बाप की जितनी हो सकता है इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। उनकी ही वजह से आपको तरक्की मिलनी है, उनकी ही वजह से आप दुनिया में आए, ठीक है। और उन माँ बाप की कभी भी आप एक रात का भी दे नहीं दे सकते, माँ की एक रात का भी बंदा दे सकता। तो जितनी भी हो सके अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, उनकी खिदमत करें, अपने से बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने छोटों से प्यार करें, और पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करें कि जो पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र हो, बाइस शर्मिंदगी ना हो। जहाँ पाकिस्तान में भी हैं, कहीं ओवरसीज़ भी हैं, क्योंकि मैं ओवरसीज़ जाता हूँ, हमारे पाकिस्तानी लोगों ने कुछ काम इस तरह के किए कि जो हम वहाँ पे लोग चेहरे छुपाते हैं कि जब हम पाकिस्तानी कहते हुए शर्माते हैं। तो ऐसा कोई काम ना करें कि हम एज ए पाकिस्तानी शर्म से ना पूछ पाए, हम एज ए प्राउड कहें कि आई एम प्राउड ऑफ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये मैसेज है कि कहीं भी है तो अपने कंट्री को, अपने मज़हब को, अपने दीन का नाम ऊंचा रखें। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अपना कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपने प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। अगर आप किसी नए फनकार से, किसी ऐसे फनकार से मिलना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अली नवाब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।